ربستا کرم چی اوشی پا جہان باندے بالاشی تو عزت سے چال ورکے بیا باچا پا دی دنیا شی وی چھے کده سمی او کده غرخ کولی دی وی پټولی دنیا کې پښتانه کولی دی وی زما بریتونه او ستا باڼه کولی دی وی خیر دی بل چانه تپوس وکړه دا پسرلي ستانه وسخ کولی دی وی کلی ته راشه ای مسافر لالیا وی دلته هوا او دلته اوبه کولی دی. آج ہم جس شخصیت کا تعارف آپ سے کروا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں حاجی محیب اللہ خان صاحب کے والد محترم مسافر غنی ول سعادت خان ہیں. آپ کی پیدائش 1939 میں شاہ عالم بابا چکدرا میں ہوئی. 1963 میں آپ فوج میں بھرتی ہوئے اور ایک جانباز سپاہی کی حیثیت سے 1965 کی جنگ میں ریگولر فوجی کی حیثیت سے لڑے اور دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور غازی بن کر لوٹے. دوسری مرتبہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک کی خدمت کا موقع ملا. 1971 کی جنگ میں دوبارہ ملک کو قوم کی خدمت کرتے ہوئے جنگ میں بھرپور حصہ لیا اور اس مرتبہ بھی آپ غازی بن کر لوٹے. والد کے انتقال کے بعد چھوٹے بھائیوں اور گھر کی سرپرستی بھی کی. آپ کا انتقال رضا الہی سے 2003 میں کراچی میں ہوا اور آپ کی تدفین عالمگیر قبرستان مواج کوٹ میں ہوئی. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. آج ہم آپ کو جس شخصیت سے متعارف کروا رہے ہیں وہ ہمارے ہر دل عزیز بھائی حاجی محیب اللہ خان صاحب. آپ کی پیدائش 30 مارچ 1970 میں مالاکنڈ ایجنسی 13 کلی میں ہوئی. آپ کا آبائی گاؤں شاہ عالم بابا ضلع دیر لوئر ہے. 1986 میں گورنمنٹ ہائی اسکول مالاکنڈ سے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا اور 1988 میں ایف اے گورنمنٹ ڈگری کالج تھانے سے پاس کیا. 1989 میں تجارت کی غرض سے کراچی ہجرت کی اور اپنی قدرتی صلاحیتوں اور انتھک جدوجہد سے کاروبار کا آغاز کیا. 1992 میں شادی کی. آپ کے علاوہ آپ کے 4 بھائی اور بھی ہیں جن میں ایک بھائی کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا اور اب آپ اور آپ کے دوسرے بھائی آپ کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہائش پذیر ہیں. آپ محمدی کالونی میں محب اسپورٹس کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور کھلاڑی بھی رہ چکے ہیں. محمدی کالونی میں ڈرائیور تنظیم کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور عوامی تنظیم فلاح و بہبود کے بانی و سرپرستی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. عوامی مسائل کے حل کے لیے پیش نظر آتے ہیں. آپ نے محمدی کالونی میں دکھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے عوامی تنظیم فلاح و بہبود کی بنیاد رکھی جو آج بھی الحمدللہ شان و شوکت سے اور آپ کے سماجی کاموں کی بدولت کامیابی سے جاری و ساری ہے. اس کے علاوہ آپ سیاسی لحاظ سے پاکستان مسلم لیگ نون محمدی کالونی UC5 کماڑی ٹاؤن کے صدر اور بلدیاتی الیکشن میں ایک مقبول ترین امیدوار برائے چیئرمین کے لیے نامزد ہوئے. 2005 میں ناظم کے انتخاب میں 2400 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے. شروع سے ہی غریبوں اور ایماندار شخصیتوں کا ساتھ دیا اور انہی کی فلاح اور خدمت میں اپنا وقت تاحال لگا رہے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم رکھے اور آپ کو اجر نوید عطا فرمائے.
नेबुल्ला खान साहब हमारा मायनाज कीपर था हमारी टीम में। हमारी क्रिकेट टीम का नाम था अब्बासिन क्रिकेट क्लब। बड़े बेहतरीन दिन गुजरे। ये फिर हमारे साथ इनका छोटा भाई था अमानुल्लाह, और दूसरा इनका एक साथी था अब्दुल रकीब साहब। तो ये काफ़ी सारे हमारी टीम के इतने लोग हो गए थे कि तकरीबन 2-3 टीमें बनने के काबिल थे, इतने लोग हो गए थे। काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा। कम से कम 17-18 साल हम क्रिकेट खेलते रहे थे। बेहतरीन ज़बरदस्त आदमी है, समझ आई। हमारा तो खैर पुराना दोस्त भी है, तो हमारी तो वैसी बहुत इज्जत करता है, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त अच्छा आदमी है। तो हम इंशाल्लाह उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। तो ये है कि बेहतरीन आदमी है। आपकी किरदार, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी वफादारी, आपकी हमदर्दी से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। और जो टाइम आपके साथ 12 से 13 साल हमने स्पेंड किया, उसमें इस चीज़ को हमने पाया कि आपने हमेशा हक और इंसाफ का साथ दिया। आपने हक और इंसाफ की खातिर और अपने मफाद के लिए कभी नहीं सोचा, बल्कि आपने हमेशा जिस शख्स ने, जो आपका दरीना से दरीना यानी क्लोज भी आपके वो शख्स आपके रहा, अगर उसने खिलाफ जुर्म कोई काम किया, उसने अगर किसी भी किस्म की कोई खिलाफ काम किया, तो आपने खुलेआम, ना कि ये एक बड़े लीडर की एक खासियत होती है, याद रखें कि अपने बंदों की छुपाया जाए, उनको एक हमराज बना के उनके राजों को छुपाया जाए। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, आपकी इस अकीदत को, आपकी इस दलेराना सियासत को मेरा सलाम है कि आपने हमेशा गैर कानूनी शख्स, बेशक वो आपका दरीना साथी है या पार्टी का सीनियर तरीन वर्कर है या कारकुन है, आपने उसको हमेशा उसके गलत इकदाम की वजह से आपने उसको आड़े हाथों लिया और आपने उसके साथ चलने से इनकार किया। और इसकी अदा की वजह से आप सियासी एक मकबूल और एक अजीम लीडर माने जाते हैं। और मैं हकीकत में ये कहूँगा कि आप मोहम्मदी कॉलोनी के आवाम का दर्द रखने का वाकई एक बहुत बड़ा हुनर है आपके पास। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जनाब चेयरमैन साहब आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। غیرت لري پښتو لري پښتون دې زمونږ ځان دی، غیرت لري پښتو لري پښتون دې زمونږ ځان دی، زکه ته زاریږو په مونږ ټولو باندې ګران دی، زکه ته زاریږو په مونږ ټولو باندې ګران دی، مونږ ته قربان شو دنیاله دې ننګاله دی، مونږ ته قربان شو دنیاله دې ننګاله دی، نوم نشانو چت لري هم دغه دلبرې دی، نوم نشانو چت لري هم دغه دلبرې دی، د هیڅ چا نه یریږي نه بې شک چې ازمرې نم نشانو چت لري هم دغه دلبرې دی، نم نشانو چت لري هم دغه دلبرې دی۔ میں آپ سب کا اور خصوصاً محب اللہ خان اور اس کی پوری ٹیم اور مجھ سے محبت رکھنے والے تمام بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کے لیے تقریباً 15 دن 20 دن سے لگے ہوئے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور میں وہ تمام ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں، جس طرح ایک کمپین چلائی، مہم چلائی، اور ساتھ ساتھ وہی گراؤنڈ کا جلسہ گاہ کی جس طرح تیاری کی، سارے الفاظ میں میرے ساتھ نہیں کہ اس کو ادا کرو۔ اور پھر آپ نے جس محبت اور خلوص سے آپ لوگوں نے شرکت کی، تو میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کی یہ محبت یاد رہے۔ جتنا کہ آپ کے مسائل کا تعلق ہے، تو مجھے آپ کے مسائل کا، میں خود بھی ایک ورکر بندہ ہوں، اور مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ کے مسائل ہیں، خاص کر ہمارے پٹھانوں کے اور پھر بنگالی بھائیوں کے، تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں چیئرمین نادرا سے بھی بات کروں گا، آپ کی ٹیم کو بھی ملاؤں گا، اور اس کے لیے کوئی جتنا ممکن ہے حل نکالیں گے۔ میرا نام بشیر بلیری ہے اور مچھر کالونی میں رہتے ہیں ہم لوگ۔ اور جب سے میرا چیئرمین صاحب سیاست میں تو یہ ماشاءاللہ تقریباً 20-22 سال ہو گئے کہ سیاست میں ہے، لیکن جب باقاعدہ ابھی اس سے پچھلے جو اسٹیپ تھا چیئرمین شپ کا، تو اس میں جب اس میں حصہ لیا الیکشن میں، تو میں فیکٹری میں کام کر رہا تھا، تو وہاں سے چیئرمین صاحب نے مجھے بولا گیا کہ اس کو چھوڑو، آپ ہمارے ساتھ یہاں رہیں انشاءاللہ۔ تو
मैंने वहाँ से काम छोड़ा, फिर चेयरमैन साहब के पास आ गया हूँ और तकरीबन 5-6 साल हो गए कि मैं चेयरमैन साहब के साथ पर्सनल सेक्रेटरी के फर्ज अंजाम दे रहा हूँ। और चेयरमैन साहब की शख्सियत पहले भी हम तो सुनते थे, लेकिन अब मुझे प्रैक्टिकली यानी तजुर्बा हो गया कि चेयरमैन साहब वाकई अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार और अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। और तकरीबन कॉलोनी के अंदर तकरीबन 5 लाख की आबादी है। इसमें देखो अपने आप को कोई बुरा नहीं बोलता, अगर आप किसी से पूछ लो कि आप कैसे हो तो बोलते हैं अच्छा हुआ, ठीक हो, तो सब अच्छे हैं। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब के मुकाबले में शायद अखलाकी तौर पे और खिदमत के लिहाज से और दिन रात अवामी और इस कॉलोनी की खिदमत के लिहाज से इसका नंबर जो है ना वो फर्स्ट है, पहला नंबर है। दूसरी बात चेयरमैन साहब हमें ये है कि कभी उसमें इतने हर चीज़ के बावजूद अल्लाह पाक ने इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, दौलत भी दी है, लेकिन उसमें अगर एक मादा नहीं है तो वो बड़ेपन का, उसमें कोई बड़ाई नहीं है, उसमें कोई गुरूर नहीं है, उसमें कोई जो है अपने यारों से, दोस्तों से, अपने कॉलोनी के लोगों से या बाहर के लोगों से वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता। और यही हमारे साथ ज़मीन पे बैठता है। और मेहमान नवाजी के लिहाज से अगर मैं देख लूँ तो ये मेरा तजुर्बा है कि पूरे पाकिस्तान में मैंने ऐसा मेहमान नवाज शख्स नहीं देखा, शायद कहीं हो, लेकिन और कॉलोनी में तो इस जैसा मेहमान नवाज है ही नहीं। ये तो हमारी भी गारंटी है और तमाम लोगों को इस चीज़ का पता है। अल्लाह के फजल करम से वो बोलते हैं ना कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो चेयरमैन साहब की जो शख्सियत है वो हकीकत है, वो उसकी खुशबू हर वक्त तरोताज़ा है, साल के 12 महीने तरोताज़ा है। और ख़िदमत के लिहाज से मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपको चेयरमैन जैसे खिदमत का मौका फराहम करे। और अल्लाह पाक इसको खुश और आबाद रखे और कामयाब रखे। इंशाअल्लाह हम इसके साथ हैं, हत्ता दम मर्ग इंशाअल्लाह इसके साथ रहेंगे। और हमारे लिए ये नवाज शरीफ भी है, हमारे लिए शहबाज शरीफ भी है, हमारे लिए मुस्लिम लीग भी है। और इंशाअल्लाह ये जहाँ भी ये खड़ा होगा हम इनके साथ शाना बशाना होंगे। जहाँ इसका पसीना गिरेगा इंशाअल्लाह वहाँ पर हमारा लहू गिरेगा। और इंशाअल्लाह कभी हम शिकायत का मौका इसको नहीं देंगे। अल्लाह पाक इसको खुश रखे, आबाद रखे। और इसके यार और इसकी देखो काबिलियत और किरदार का यहाँ से आप सब अंदाज़ा लगा सकते हो कि चेयरमैन की टीम में पाकिस्तान के तमाम ज़बानों वाले लोग मौजूद हैं। सवादी के हैं, स्वात के हैं, दीर का तो खैर उसका इलाका है, हमा जैसे हम बुनेर के हैं, पंजाब के हैं। मतलब है कि एक उसने एक गुलदस्ता बनाया हुआ। तो ये उसकी काबिलियत की सबसे बड़ी निशानी है कि वो तमाम लोगों को, तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को अपने साथ लेके चलता है। और कभी अपने साथी को, अपनी टीम के साथी को अपने से कम नहीं समझा और अपने भाइयों की तरह रखता है और अपने भाई समझता है। लिहाजा हमारे तरफ से भी इंशाअल्लाह यही दुआ है और हमारी यही कोशिश है कि हम इंशाअल्लाह चेयरमैन को शिकवे का मौका नहीं देंगे। वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अलीदार खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला केमाड़ी की नायब सदर हूँ और चेयरमैन महबूबुल्लाह खान के साथ चल रहा हूँ। और तकरीबन ये इलेक्शन इससे पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था उसमें वार्ड नंबर 3 से मैं जानर गुनसब का सीट लड़ा था। तो उसी टाइम से हमारा चेयरमैन से ताल्लुक़ बन गया और आज तक भाई जैसा ताल्लुकात है उससे जैसा एक फैमिली का हिसाब किताब है। क्योंकि चेयरमैन महबूबुल्लाह के साथ जिसका भी ताल्लुक़ है, जितना भी यार दोस्त है वो अपना भाई समझता है। ये नहीं बोलते है कि ये फलाना हमारे से ये है वो है, यानी सब एक ही नज़रिए। कुछ इसमें ऐसा दोस्त भी थे कि इसने एतबार किया ज़्यादा, क्यों चेयरमैन से एक मुखलिस इंसान है, फिर कभी ऐसा बंदे के ऊपर एतबार करते जैसा अपना भाई। लेकिन वो
नादान दोस्त ये समझते हैं कि ये समझता नहीं है, लेकिन नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह चेयरमैन महबूबुल्लाह खान जब चेयरमैन भी रह चुका था, उसी टाइम भी हमारा उसके साथ भाईबंदी का हिसाब है और आज भी है। कुछ हमारे दोस्त थे, जब हम शुरू में चेयरमैन से बना था तो कुछ हमारे साथी थे वो पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, तो मेरे को भी बोला यार इधर तो कुछ मिलता नहीं है, पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। मैंने बोला कि भाई जान हमारा चेयरमैन महबूबुल्लाह के साथ जब एक दफ़ा इलेक्शन लड़ा, उसमें मेरे को ऐसा कोई खूबी बताओ कि हमारा उससे दिल भर जाए कि ये चेयरमैन गलत है। तो इसी वजह से मैंने उससे भी ये बात किया, वो चला गया पीपल्स पार्टी में। हमने चेयरमैन को बोला था जब तक हम कराची में होगा तो महबूबुल्लाह खान के साथ होगा, जब मैं महबूबुल्लाह के साथ ना हो तो मैं गांव में चला जाऊंगा, और उधरी गांव में इंशाल्लाह होगा। कराची में जब भी होगा इंशाल्लाह महबूबुल्लाह खान के साथ उनका खिदमत भी करेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी। चेयरमैन महबूबुल्लाह खान जिनके साथ हमारी वापसी है तकरीबन 30 साल से, माशाल्लाह बहुत अच्छे मुखलिस इंसान है, इलाके के लिए समाजी रहनुमा भी रह चुके हैं और इलेक्शन में भी खड़े होते हैं, और हमारे इनके साथ 30 साल का वापसी है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। मेरा नाम जानिस खान है, मैं अटक का रहने वाला हूँ। मैं जब से मच्छर कॉलोनी में दाखिल हुआ, तकरीबन मेरा ख्याल है अल्लाह पाक झूठ में बुलावे 74-75 से मैं उसको जानता हूँ। अखलाक में और दुकानदारी की लाइन से बहुत अच्छा आदमी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ मच्छर कॉलोनी खुशाल खान चौक से और सियासी वाबस्तगी हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, उसके हैसियत से मैं यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी सदर हूँ। और हमारा हाजी महबूबुल्लाह खान के साथ जो ताल्लुक़ है वो मेरा 12 साल का एज था कि उस वक़्त से हम हाजी महबूबुल्लाह खान को जानते एक कारोबारी हैसियत से, उस वक़्त सियासत में नहीं थे। उसके बाद उनके साथ हमारा ताल्लुकात मोहल्ले के तौर पर चलता गया और फिर उन्होंने एक समाजी तंजीम बनाया, फिर हम उसमें भी उनके साथ थे। उसके बाद 2005 में उन्होंने सियासत में कदम रखा, फिर भी हम उनके साथ थे और आज भी हम उनके साथ हैं। और आज वो ज़िला के माड़ी के सदर है और हम UC5 के मच्छर कॉलोनी के यूथ विंग के सदर है। और हमने उनको कभी भी इस मामलात में मोहल्ले के हिसाब से हो, इलाके के हिसाब से हो या इन लोगों के गमी खुशी के हिसाब से हो, कभी भी हमने उसको गाफिल नहीं पाया है। जब भी जिधर भी उसकी ज़रूरत पड़ी है, जिसने भी आवाज़ दी है, वो आधी रात को चल के निकले उनके लिए और उनके मसले मसाइल हल किए। इंतहाई ईमानदार, दियानतदार और वादा वफा करने वाला इंसान है। जो वादा करता है वो वफा करता है, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर, सबसे बड़ी खूबी उसके अंदर क्या है कि वो झूठ नहीं बोलता है। हम साथियों से या किसी से भी वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, झूठ का सहारा वो नहीं लेता है। और कोई बुरी आदत के बारे में अगर बात करूँ तो बुरी आदत ये है कि वो मशवरा थोड़ा जैसा अपने लो लेवल के साथियों से कमतर करता है और जो बड़े लेवल के साथी हैं उनसे ज़्यादा करता है। तो इस मामले में हमारा उनके साथ हमेशा इख्तिलाफ रहता है कि आप अगर मशवरा लो तो सबसे लो, तो इसमें खैर भी होता है। तो हमारे बड़े हैं और हमारे वालिद साहब या हमारे रिश्तेदार यहाँ पर नहीं है, मगर उन्होंने हमेशा हमारे सर पर शफकत का हाथ रखा है। और देखो, हम कारोबार के हिसाब से कारोबारी लोग हैं, हमारा कोई ऐसा 2 नंबर काम नहीं है कि हमको किसी सियासी पार्टी का सहारा लेना है। हम लोग कारोबारी लोग हैं और ये एक शरीफ इंसान है, एक अच्छा इंसान है, इसलिए इससे वाबस्तगी है। ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, अगर ये पाकिस्तान के किसी भी पार्टी में हो, हमारे को पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, हमारे को इस शख्स से ताल्लुक़ है और इसकी शख्सियत से ताल्लुक़ है। वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मतीन शाह है। UC5 में वार्ड 1 से जनरल काउंसलर का इलेक्शन लड़ा हूँ और हाजी महबूबुल्लाह की क़ियादत में। और हाजी महबूबुल्लाह बहुत ही मुखलिस और बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसमें से हमारे मोहल्ले या हमारे इलाके, हमारे यार दोस्त ने बहुत अच्छा तरीके से साथ दिया और इंशाअल्लाह आगे भी साथ देते रहेंगे। अल्लाह पाक इसको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारे यार दोस्त को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें भी सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि हम लोग मज़ीद हाजी महबूबुल्लाह
भाई कीजिए, आगे MPA MNA के लिए कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब UC5 यूथ विंग जनरल सेक्रेटरी रफीकुल्लाह खान साहब, आज जो एक वीडियो हमारे जनाब हरदिल अजीज़ जनाब हाजी अब्दुल्ला खान साहब के ऊपर बन रही है, तो कुछ बातें मैं आपको बताते चलूँ कि हाजी अब्दुल्ला खान साहब वो शख्सियत है जो अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 साल से मैं उनके साथ हूँ, और वो छोटे के ऊपर और बड़ों के ऊपर शफकत करने वाला है और हमेशा जोड़ने की बातें की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उसने हमेशा मोहम्मदी कॉलोनी और आवाम की खिदमत की है। तो इस तरह लोगों ने इस इलेक्शन में हमारे साथ दिया, उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अब्दुल्ला खान साहब का खैर आज भी आबाद है और इंशाल्लाह आबाद रहेगा। हम उनके साथ थे है और रहेंगे, और इंशाल्लाह जब भी तेरे खैर में हम उनके साथ भरपूर तरीके के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ देंगे। और हमारे इतने के जितने भी लड़के हैं इंशाल्लाह और चेयरमैन हाजी अब्दुल्ला खान साहब की खिदमत किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना नाज़रीन गुजर चुके हैं जिनको कभी मैंने दरवाज़े खुले नहीं देखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाइस शख्स और अवाम में गुल मिलने वाला और दरवाजे हमेशा मैंने इसके लोगों के लिए खुले हुए देखे। और आधी रात को भी कोई फ़ोन करते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी अजीज़ भाई जनाब हाजी अब्दुल्ला खान साहब उनके साथ हर मसले में शाना बशाना करते हैं। तो हमें जितने भी हमारे अवाम जो उन लोगों को भी चाहिए कि कॉलोनी की सतह पर ऐसे आदमी को इंतखाब करे जो अवाम के दरमियान गए और कुछ सुख समझे और एक लीडर जलूस और ज़रूरतमंद इंसान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उसके साथ हैं, शाना बशाना हैं, उसकी मोहब्बतें हैं, उसकी ख़वाहिश है, उसकी शफ़क़त है, इंशाल्लाह हाजी अब्दुल्ला खान साहब एक दिन आएंगे तो ज़रूर सुख करेंगे।